Jai Swaminarayan student. So today we are going to see the concept regarding algorithm and flowchart the in the Python video series. So the problem solving technique we are given the objective of a certain problem and we have to find the solution of that problem. So a typical programming task, it is divided into the two phase. First is the problem solving phase and second one the implementing phase. The problem solving phase itself indicate as the algorithm. Okay, it is nothing but as the order sequence of step that describe the solution of a problem. So that is called as algorithm. And implementation phase, once the problem is discussed, then the technology with the help of various technology we can implement that algorithm. That is the implementation phase. So step in problem solving, like first we produce a general algorithm that is contain the pseudocode. Pseudocode represent the source code, that is the programming code in a certain algorithm. Refine the algorithm successively to get step by step detailed algorithm that is very close to computer language. Okay, so pseudocode is an artificial and informal language that help programmer develop algorithm. It is very similar to everyday English language. For example, see the problem statement is given here, that is write an algorithm to determine a student final grade and indicate whether it is passing or failing. The final grade is calculated as the average of 4 marks. So in this question, in this problem statement, the problem is given, the we have to calculate the final grade, that is whether the student is pass or fail in the examination by calculating the average of 4 marks. So by observing the problem statement, we the main thing came to our mind that it required the 4 input, that is the marks 1, marks 2, marks 3, marks 4. Then we will do the addition of that 4 marks, then we will divide that addition by divide by 4. In this way we will get the average. We will compare that average whether it is below 50 or not. If it is below 50, we can calculate the student is fail, and it is above 50, the student is pass. So in this way, by for defining the solution of a problem, we can start with the algorithm. So let's see first step, the pseudocode. ओके, pseudocode है ना, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हमें उसको एक कोडिंग के फॉर्म में डिफाइन करना है. जैसे पहली स्टेप रहेगी इनपुट सेट ऑफ 4 मार्क्स, 4 मार्क्स को हम इनपुट करवाएंगे. उसके बाद कैलकुलेट देयर एवरेज. ओके, देन उसमें इफ एल्स की कंडीशन आएगी, जैसे एवरेज अगर बिलो 50 है तो उसको फेल कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको पास में हम प्रिंट कर देंगे. अब जैसे सूडो कोड हमने डिफाइन किया, इसके बाद इसका अल्गोरिथम डिफाइन करते हैं. तो अल्गोरिथम क्या होता है, सीक्वेंस, दैट इज़ अ ऑर्डर ऑफ स्टेप. तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सी इनपुट M1 M2 M3 M4, राइट, 4 मार्क्स हम इनपुट करवा रहे हैं. स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, हम ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं. ग्रेड कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, चारों मार्क्स की एडिशन करेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा. और स्टेप 3 में हम उस एवरेज को कंपेयर कर रहे हैं. अगर वो जो ग्रेड है वो 50 के नीचे है तो हम उसको प्रिंट फेल कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज हम प्रिंट पास कर रहे हैं. तो ये हो गया द स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन. स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन यानी 1 बाय 1 स्टेप विल बी एग्जीक्यूट, सो दैट इज़ अ अल्गोरिथम. ओके, अब इसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट में देखते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय फ्लो चार्ट, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सेम अल्गोरिथम को अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से करें तो उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है. सो इट शो द फ्लो चार्ट शो हाउ द डेटा फ्लो फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू द कंप्यूटर टू फाइनल डेस्टिनेशन टू द यूजर. Okay, so for that the different symbol used to draw each type of flow chart. So let's start with one by one. So see, these are the basic symbol used for the flow chart. जैसे हमें फ्लो चार्ट की स्टार्ट करना है, प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, तो हमें ओवल शेप यूज़ करना है. इट डिनोट द बिगनिंग और एंड ऑफ ए प्रोग्राम. तो जैसे प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, दैट इज स्टार्ट एंड स्टॉप, दैट शुड बी इनसाइड दिस ओवल बॉक्स. ओके, उसके लिए हम ये ओवल सिंबल यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है पैरेललोग्राम.
पैरेललोग्राम में हम इनपुट लेंगे, वॉट एवर इनपुट वी आर टेकिंग फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी विल write inside this parallelogram box. For example, in the previous example, we have considered the input as M1, M2, M3 and M4. So that should be is inside this parallelogram. Okay. In the rectangle, that is denote a process to be carried out. That is what process we are going to be carried out, what would the formula we are using to perform the logic operation. So that should be inside in this rectangle box, okay, which is called as the process block. Then there is a diamond. Diamond denote the decision whether it is the true or false, okay, so that's why that should be written in the decision box. Then hybrid, that is a output operation, whatever the output we get from the following program we should be mentioned in this box. Flow line, that is connected line, how the data should be transferred from one source to another source, that should be denoted by using this flow line. So let's see the same example using this flow chart. So see, here is the on the right hand side there is a algorithm for calculating the grade of a student, and in the left hand side the flow chart is given. तो स्टेप 1 में क्या है, इनपुट M1, M2, M3, M4, राइट. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है. स्टार्ट आपको ओवल बॉक्स में करना है. उसके बाद जो ये पैरेललोग्राम बॉक्स है उसमें आपको इनपुट ऑपरेशंस लिखना है. तो इनपुट में क्या ले रहे हैं हम, M1, M2, M3, M4. तो चारों भी मार्क्स इसमें इनपुट करेंगे. देन प्रोसेस ब्लॉक. प्रोसेस ब्लॉक में क्या आएगा, हाउ वी कैलकुलेट द ग्रेड, दैट इज M1, M2, M3, M4 डिवाइड बाय 4. सो ये जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो ये आएगा प्रोसेस ब्लॉक में. क्या प्रोसेस कर रहे हैं हम, क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट. उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि ग्रेड इज़ लेस दैन 50 है तो वो फेल हो जाएगा, अदरवाइज वो पास हो जाएगा. तो अगर डिसीजन लेना है, यानी दो कंडीशन आ रही है तो हमें डिसीजन ब्लॉक लेना है. तो उसके लिए हम ये डायगोनल बॉक्स यूज़ करेंगे. इसमें देखो कंडीशन बीच में लिखेंगे इज़ ग्रेड लेस दैन 50. एक कंडीशन एस होगी, एक कंडीशन नो होगी. अगर एस है तो ये आउटपुट बॉक्स है जिसमें हम आउटपुट डिस्प्ले करने वाले हैं. तो ये प्रिंट फेल हो जाएगा और इसमें आउटपुट रहेगा प्रिंट पास, और ये फाइनली प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. ये स्टार्ट एंड स्टॉप शुड बी रिटन इन द ओवल बॉक्स. वाई, because these are the beginning and ending of a program. So this is the first flowchart for this example. See for another example, write an algorithm and draw flowchart to convert the length in feet into centimeter. तो इसका सूडो कोड पहले देखेंगे. इनपुट द लेंथ इन फीट, सबसे पहले हमें इनपुट करना पड़ेगा लेंथ इन फीट, लेंथ इन सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग LFT विथ 30. हमें उसका फॉर्मूला कन्वर्शन पता है. देन प्रिंट लेंथ इन सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका एल्गोरिथम ऐसा रहेगा, LCM निकालना पड़ेगा. जो लेंथ रहेगी फीट की जो लेंथ है उसको इंटू 30 से करोगे तो आपको सेंटीमीटर में मिल जाएंगी. LCM रिप्रेजेंट द लेंथ इन सेंटीमीटर और LFT रिप्रेजेंट द लेंथ इन फीट. ठीक है, तो इसका फ्लोचार्ट इस तरह से आएगा. इसमें डिसीजन ब्लॉक नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन नहीं लगा रहे. सीधा हम स्टार्ट करेंगे. इनपुट क्या करवा रहेंगे वो लिखेंगे हम पैरेललोग्राम बॉक्स में. तो इनपुट रहेंगी लेंथ इन फीट. उसके बाद ऑपरेशन क्या करेंगे, ये जो लॉजिक दैट इज़ द फार्मूला जो यूज़ कर रहे हैं वो इसमें आएगा. तो लेंथ इन सेंटीमीटर लेंथ इन फीट इंटू 30, और जो आउटपुट मिलेगा प्रिंट लेंथ इन सेंटीमीटर, उसको फाइनली स्टॉप कर देंगे. Okay, hope you understood this algorithm and flowchart concept. Then write an algorithm, draw a flowchart, will read two sides of a rectangle and calculate its area. तो first write the pseudo code. Okay, तो pseudo code में वही इनपुट क्या करवाओगे, फार्मूला क्या होगा और आउटपुट क्या आएगा, ये तीनों चीज़ मेंशन करना है. उसके बाद ये देखो उसका एल्गोरिथम है. इनपुट क्या रहेगा इसमें, विड्थ और लेंथ. एरिया कैसे आएगा, लेंथ इंटू विड्थ और प्रिंट एरिया, राइट. अब इसको एल्गोरिथम फ्लोचार्ट के रूप में कैसे आएगा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इनपुट लेंगे विड्थ एंड लेंथ, एरिया निकालेंगे, एरिया डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. तो ये हो जाएगा फ्लोचार्ट फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नेक्स्ट, राइट एन एल्गोरिथम, ड्रॉ फ्लोचार्ट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये ऑलरेडी प्रोग्राम हमने किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पाइथन में. आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो. सबसे पहले इसके लिए सूडो कोड लिखो,
सूडो कोड यहाँ पे गिवन है, आप इसको फॉलो करो। सूडो कोड लिखने के बाद आप इसको एल्गोरिथम डिज़ाइन करो, ठीक है। और जैसे एल्गोरिथम हो जाता है इसको फ्लो चार्ट में लो। आप ये करके देखो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, अगर नहीं आए तो मैं हूँ यहाँ पे फॉर सॉल्विंग योर क्वेरीज। ओके, नेक्स्ट इज द डिसीजन स्ट्रक्चर। इट इज़ यूज फॉर द कंडीशन ब्लॉक। ओके, सो जब भी हम कंडीशन लेंगे तो हमें ये डिसीजन स्ट्रक्चर यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से डिसीजन स्ट्रक्चर रहेगा आपका। डायमंड बॉक्स में रहेगी डीसी कंडीशन, दो साइड में उसकी कंडीशंस आएंगी, आइदर येस और नो। अगर एस है तो जो भी ट्रू कंडीशन है वो डिस्प्ले होगी, अगर नहीं है तो जो भी फॉल्स कंडीशन है वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। नेक्स्ट इफ एल्स स्ट्रक्चर है। इफ एल्स स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा है, तो इफ एल्स स्ट्रक्चर भी वैसे ही आएगा आपका। बीच में कंडीशन आएगी, एक साइड में पॉजिटिव कंडीशन, सेकंड में इसमें नेगेटिव कंडीशन। इस तरह से ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए पाइथन में, सो आई थिंक नो नीड टू डिस्कस हियर, यू जस्ट गो थ्रू इट। एक एग्जांपल है इसमें कि राइट एन एल्गोरिथम दैट रीड टू वैल्यू, डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड प्रिंट द लार्जेस्ट वैल्यू विद एन आइडेंटिफाइंग मैसेज। तो आपको इसमें दो वैल्यू लेने हैं, दोनों भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको इसमें से मैक्सिमम वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो उसमें कंडीशन अप्लाई करके देखो और वहाँ पे मैसेज भी आना चाहिए कि द लार्जेस्ट वैल्यू इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको आप फ्लो चार्ट थ्रू बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, यू जस्ट डू इट ऑन योर नोटबुक एंड सेंड मी द आउटपुट, सेंड मी द स्नैपशॉट सो दैट आई कैन चेक। So one more example is for your homework. You have to read the 3 numbers. Okay, 3 नंबर आपको लेना है, उसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन है वो आपको देखना है। उसके लिए आप सूडो कोड लिखोगे, एल्गोरिथम लिखोगे और फ्लो चार्ट बनाओगे। जस्ट राइट वंस। अगर नहीं आता है तो मैंने इस वीडियो में वैसे डाला है, और ये 2-3 एग्जाम्पल है फॉर दी प्रैक्टिस। जस्ट डू इट एंड वॉट एवर क्वेरी इफ़ यू हैविंग यू कैन आस्क मी। So thank you, hope you understand the video. So thank you, we will meet in the next video series of Python where we start the tuples. Thank you, Jai Swaminarayan.